బ్రదర్ సురాజుర్ రెహమాన్ గారికి ధన్యవాదాలు. యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తున్నట్టుగానే ఉంది. అందరినీ కూడా చాలాసేపు ట్రాన్స్లో ఉంచారు. చాలా చక్కటి ఉపన్యాసం. అందరూ కూడా పాటించేటటువంటి ఆయన సూచనలు పాటించాలి. ఎవ్వరు కూడా లేవద్దండి. చిన్న స్నాక్స్ బ్రేక్ ఉంటుంది. మీ వద్దకే వచ్చి మీ చేతిలోనే పెడతారు. అందరికీ సఫిషియెంట్గా సరిపోను ఉన్నాయి. ఎవ్వరూ లేవద్దు. దయచేసి ఒక్క 5-10 నిమిషాలు చిన్న బ్రేకు. ఎందుకంటే షుగర్ పేషెంట్ ఉంటారు. మనం అనుకున్న టయానికి ఇక్కడే మీరు కూర్చున్నటువంటి సీట్లోకే మీ దగ్గరికే వస్తాయి. మంచినీళ్ళు వస్తాయి, స్నాక్స్ వస్తాయి. దయచేసి ఎవ్వరు కూడా ఒక్క అంగుళం కూడా కదలొద్దు. మనం అనుకున్న టయానికే 2 గంటలకి లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తుంది. మన ముఖ్య అతిథి గారు వచ్చేసి ఉన్నారు. వారి ప్రసంగం తర్వాత లంచ్ బ్రేక్గా మన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి వచ్చేస్తున్నారు. अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ मोहतरम व मुकर्रम आज के हमारे मेहमान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर, कई इंग्लिश हिंदी किताबों के राइटर, इल्मी अदबों शख्सियत जनाब डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, कन्वीनर खुसरू फाउंडेशन न्यू दिल्ली साहब को स्टेज पर तशरीफ लाने के लिए दावत देता हूँ. स्टेज पर तशरीफ लाए. ఈ రకంగా మరి మనం గ్రామాల్లో వెళ్ళిన తర్వాత గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ చురుకైన కార్యకర్తలుగా ఎవరినైతే మనం ఎంపిక చేసుకున్నామో వారు ముఖ్య భూమిక పోషించాల్సి ఉంటుంది ఆ గ్రామంలో. ముఖ్యంగా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మన ముస్లిం సోదర సోదరీమణులతో పాటు ముస్లిమేతరతో కూడా సత్సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కేవలం మనం ముస్లిం ఐక్య సంఘం ముస్లిమ్స్కే మాత్రం కాకుండా ముస్లిమేతరులను కూడా మన సోదర సోదరీమణులుగానే భావించి వారితోటి సఖ్యతను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మన ముస్లిం సోదర సోదరీమణులు ఎవరైతే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారి యొక్క పూర్తి వివరాలు, వారి యొక్క స్థితిగతులు, ఆర్థిక పరిస్థితి, వారి కుటుంబ పరిస్థితి, వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నిటినీ మనం పరిశీలించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ వారి యొక్క పూర్తి సమాచారం మన వద్ద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము వారికి సేవల్ని అందించగలం. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతమంది మక్తబ్కి వస్తున్నారు, మక్తబ్ లేకపోతే ఆ గ్రామంలో మక్తబ్ని ఏర్పాటు చేయటం. అందుకోసం మీరు మండల కమిటీని సంప్రదించాలి. మండల కమిటీ కేంద్ర కమిటీని సంప్రదిస్తూ ఉంది. మా సహాయం కూడా తీసుకోవచ్చు. వారి ద్వారా మక్తబ్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ మక్తబ్లో పిల్లలందరూ రోజు వస్తున్నారా రావట్లేదా, ఎవరైనా రాని పక్షంలో వారి ఇంటికి వెళ్ళి వారి యొక్క పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడి ఆ పిల్లల్ని మక్తబ్కి వచ్చే విధంగా మనం తగు చర్యల్ని తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా 5 పూటల నమాజ్ స్త్రీలు ఇళ్లలో చదువుకోవటం, పురుషులు మస్జిద్కి రావటం, మస్జిద్ని ఆబాద్ చేయాలి. మనం మస్జిదులు అయితే కట్టుకుంటున్నాం కానీ మస్జిద్ని ఆబాద్ చేయట్లేదు. ఏ మస్జిద్ చూసినా గ్రామాల్లో వెళ్తే ఒకళ్ళు ఇద్దరు, ఇంకా కొన్ని గ్రామాల్లో అయితే కేవలం ఇమాం సాబ్ ఒక్కడే నమాజ్ చదువుకునే పరిస్థితి ఉన్న గ్రామాలు కూడా మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ అలా ఉండొద్దు. మస్జిద్ని ఆబాద్ చేయాలి. మస్జిద్లో 5 పూటల నమాజ్ జరగాలి. ఆ రకంగా చేస్తున్నారా లేదా, ఎవరైనా మస్జిద్కు రాకపోతే ఎవరు రావట్లేదో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దావత్ ఇవ్వటం, మస్జిద్కి రమ్మని నమాజ్ చదవమని చెప్పేసి. అదేవిధంగా మరి కుటుంబాల్లో ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యల్ని పరిష్కారం కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే మన సమస్యలు వస్తే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ముస్లిమేతరుల దగ్గరికి పోయి చేతులు కట్టుకుని నిలబడతా ఉన్నాం.
భార్యాభర్తల గొడవలు కానివ్వండి, అన్నదమ్ముల గొడవలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతర ఆస్తి తగాదాలు కానివ్వండి, ఇతర ఏదైనా సమస్య వస్తే మనం ముస్లిమేతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి మన సమస్య పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉండకూడదు. మనం ఎవరైతే యాక్టివ్ మెంబర్స్, చురుకైన కార్యకర్తల్ని మనం ఎంపిక చేసుకున్నాం. ఆ చురుకైన కార్యకర్తల బాధ్యతలు అన్నమాట ఇవన్నీ మరి మీ పరిధిలో ఉంటే మీరు చేయాలి, పరిష్కారం చేయండి. మీ పరిధిలో లేనప్పుడు, మీ వల్ల కానప్పుడు మండల కమిటీ దృష్టికి తీసుకురండి. మండల కమిటీ ఆ సమస్యని పరిష్కారం చేస్తుంది. లేదా మండల కమిటీ వల్ల కూడా కాకపోతే ఆ మండల కమిటీ సెంట్రల్ కమిటీకి దృష్టికి తీసుకొని వస్తుంది. ఈ రకంగా మన గ్రామంలో ఏ సమస్య ఉన్నా, అది ఎటువంటి సమస్యనైనా సరే దాన్ని మనమే పరిష్కారం చేసుకొని మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఆ రకంగా చేయటం కోసమే ఈరోజు మన కార్యకర్తల్ని, మన యాక్టివ్ మెంబర్స్ని, చురుకైన కార్యకర్తల్ని ఎంపిక చేసుకొని, అలాగని చురుకైన కార్యకర్తలే పూర్తి బాధ్యత వహించాలి అని చెప్పేసి కాదు, అందరి బాధ్యత. కాకపోతే కాస్త ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు దీంట్లో పనిచేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో చురుకైన కార్యకర్తని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ చురుకైన కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అలర్ట్గా ఉండి గ్రామంలో ఎప్పటికప్పుడు సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయటం, వారి యొక్క స్థితిగతుల్ని అంచనా వేయటం, ముఖ్యంగా మసీదులు ఆబాదయ్యే విధంగా మక్తబు సక్రమంగా నిర్వహించాలి. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. వీళ్ళు ఈరోజు మక్తబ్కి వచ్చి కలమాలు, సూరాలు, నమాజు చేసే విధానము ఇవన్నీ నేర్చుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మరి మక్తబ్కి వచ్చి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుంటాడో మంచి పౌరుడిగా తయారయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మక్తబ్కి వచ్చేటటువంటి పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తాడు, అక్క చెల్లెల్ని గౌరవిస్తాడు, అన్నతమ్ముల్ని గౌరవిస్తాడు. ఎవరిని ఎలా చూడాలి అనేది ఇవాళ అన్నదమ్ములు గొడవలు వస్తూ ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు పట్టించుకొని పిల్లలు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకి అన్నం పెట్టక వాళ్ళని అనాథాశ్రమంలో చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీని అంతటి కారణం ఏంటంటే వారికి సరైనటువంటి విద్యాబోధన, ధార్మిక విద్య కానివ్వండి, లేకపోతే దునియా విద్య కానివ్వండి. దునియా విద్యని ఎలాగైనా మనం నేర్పుతాం, దానికి వాళ్ళు చెప్పాల్సిన పనిలే. దునియాకి సంబంధించిన విద్యలో బడికి పంపిస్తాం, దాంట్లో పొద్దున్నే లేస్తాం, వాడిని లేపుతాం, మంచిగా స్నానం చేపిస్తాం, బట్టలు వేస్తాం, బూట్లు వేస్తాం, బస్సు వస్తుంది, బస్సు ఎక్కించి పంపిస్తాం, ఉదయం ట్యూషన్కి పంపిస్తాం, సాయంత్రం ట్యూషన్కి పంపిస్తాం, వాడికి కావాల్సిన సర్వ సౌకర్యాలు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ధార్మిక విద్యకు వచ్చేసరికి అది కావాలి, ఇది కావాలి, దీని కావాలి, మనకి దునియా కావాలి. రెండింటినీ రెండు కళ్ళుగా మనం భావించాలి. ఒకదాంతో ఒకటి ముడిపడి ఉంది. కేవలం ఇందాక మన వక్త గారు చెప్పినట్టుగా కేవలం ధార్మిక విద్య మాత్రమే సరిపోదు. ధార్మిక విద్యతో పాటు దునియాకు సంబంధించిన విద్య కూడా చాలా అవసరం. రెండింటినీ మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉండాలి. ఎట్లయితే దునియా విద్య కోసం మనం శ్రద్ధ చేసి మనం చేస్తున్నామో, అదే అందులో కొంత ఒక 5% ఈ ధార్మిక విద్య కూడా కేటాయించి మన పిల్లల్ని మక్తకు పంపించి మనం ఇవన్నీ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ చురుకైన కార్యకర్తలే మీరు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఈ సమావేశం అనంతరం ఒక ఉత్సాహంతో, ఒక నూతన ఉత్సాహంతో మేమేదో కొంత నేర్చుకున్నాము, తెలుసుకున్నాము, మన సమాజానికి, మన ముస్లిం సమాజానికి కొంత సేవ చేయాలి అనేటటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి అందరూ. ఇప్పుడు చివరి వక్త అయినటువంటి ఇందాక మనం ఆహ్వానించాం, మన నిహాయత్ अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ मोहतरमा व मुकर्रम आज के हमारे मेहमान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सबक प्रोफेसर, कई इंग्लिश हिंदी किताबों के राइटर, इल्मी अदब व शख्सियत जनाब डॉक्टर हफीजुर रहमान, कन्वीनर खुसरू फाउंडेशन न्यू दिल्ली। आप तशरीफ लाएँ, आपने बयान से मुस्तफ़ीक फरमाएँ और रहनुमाई फरमाएँ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر تشریف فرما جو رحمان صاحب، اسٹیج پر اور میرے سامنے موجود ملت اسلامیہ کے تمام حساس افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے جو اسپیکر محترم سراج الرحمان صاحب تیلگو میں گفتگو فرما رہے تھے، ان کی تقریر کا آخری حصہ جب میں سن رہا تھا تو دو کہ پرشین میں ایک مشہور کہاوت ہے، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، یعنی مائی بیلوڈ اسپیکس ٹرکش اینڈ آئی ڈونٹ نو ٹرکش، مگر مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ وہ جس طرح احادیث یعنی حدیثوں کو کوٹ کر رہے تھے، قرآن کی آیات کو کوٹ کر رہے تھے، اسلام اور دیگر مذاہب کے اندر سکینو بھونتو اور بہت ساری چیزوں کو کوٹ کرنے کے بعد وہ یہ میسج جو ہندوستانیت کا، انسانیت کا، ایکتا کا، یونٹی کا، بہترین اخلاق کا، بغض و حسد، کینہ اور چغلی سے باز رہنے کا جو آپ کو دے رہے تھے، وہ ہر انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ میں اردو، ہندی، انگریزی اس میں مکس گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ کوئی اتنا سخت جملہ نہیں بولوں گا جو تلنگانہ میں لوگوں کے سر سے گزر جائے۔ ویسے بھی یہ اردو کی زمین ہے تو اردو بھلے سب لوگ بولتے نہ ہوں لیکن اردو سمجھتے ضرور ہیں۔ دو باتیں آج کی گفتگو سے پہلے یہ کہوں گا کہ ایک تو میرا تعارف یہ ہے جس کے لیے ناظم اجلاس نے ذکر کیا کہ میں دہلی بیسڈ ایک تھنک ٹینک خسرو فاؤنڈیشن کا کنوینر ہوں جو ویل ریسرچ کنٹینٹ اردو، ہندی، انگریزی میں 30 سے زیادہ کتابیں پبلش کر چکا ہے الگ الگ ٹاپک پر، اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں یا بدگمانیاں ہیں اس کو دور کرنے کی اوتھینٹک لٹریچر کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کتابوں کو تمام یونیورسٹیز، مدارس، کالجز، ان کی لائبریریز کو کمپلیمنٹری بھیجتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ فری ایکسیس ہے کہ آپ www.khusrofoundation.org پر ہماری تمام PDF کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری پڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی 20-25% کتابیں جو بیچتے ہیں ان کی بھی قیمت بہت کم ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تو آپ اس طرح اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر لکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے آبجیکٹو کے اکارڈنگز تو لکھ سکتے ہیں، تو آپ سب کا ویلکم ہے۔ کچھ کتابیں میں مولانا مجاہد صاحب کے لیے لایا ہوں جو اس کے بعد ان کو پیش کروں گا۔ دوسرا، ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش شیخ حسین صاحب کے ساتھ مل کے یہ کی ہے جو وقت کی انتہائی ضرورت ہے ہر دور میں۔ جس طرح ایک اچھا لٹریچر سوسائٹی کی گائیڈنس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمارے پاس لٹریچر کے تھرو پہنچا ہے، قرآن کی زبان میں پہنچا ہے۔ رسول نے اپنے عمل سے دنیا میں یہ دکھایا کہ قرآن کیا ہے، اس کا پریکٹیکل اگر قرآن کا دیکھنا ہو تو رسول کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے، بہت سارے اولیاء اکرام کی زندگی ہے، اور آئیڈیالوجی انسائیکلوپیڈیا کے روپ میں دیکھنا ہو تو کمپلیٹ قرآن عظیم ہے۔ تو لٹریچر کا ایک خاص دخل ہماری زندگی میں ہے، زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں سماج تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں تک کریکٹ انفارمیشن پہنچانے کے لیے، عوام کے مسائل حکومتوں تک اور حکومتوں کی اسکیمز عوام تک پہنچانے کے لیے جو برج میکنگ کا کام کرتا ہے، وہ
जमहूरियत का एक सुतून कहा जाने वाला मीडिया करता है। यह अनफॉर्चुनेट है कि कभी कभी मीडिया बायस्ड हो जाता है, वो या तो सिर्फ अपोजिशन की आवाज हो जाता है या सिर्फ सरकारों की आवाज हो जाता है, जबकि मीडिया को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की अच्छी बातों को और अच्छी स्कीम्स को आगे लाना चाहिए और आवाम और सरकारों के बीच एक ब्रिज मेकिंग का काम करना चाहिए, सोसाइटीज, देश और समाज को आगे ले जाने के लिए और आपसी सद्भावना कायम रखने के लिए काम करना चाहिए। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है जो अभी हिंदी चैनल के जरिए दिल्ली से शुरू हुआ है 3 महीने पहले जनवरी में, जनपथ न्यूज नेटवर्क। इंशाअल्लाह विद इन ए ईयर आप देखेंगे कि उसका एक पोर्टल उर्दू में भी आएगा जो कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज उससे रिलेटेड होगा, एक तेलुगु में भी आएगा और एक अंग्रेजी में भी आएगा। अभी हिंदी है तो हिंदी की व्यूवरशिप के हिसाब से उस पर कंटेंट है, अनबायस्ड है, न किसी के माउथ पीस हैं, न्यूट्रल है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनपथ न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी आवाज़ तेलुगु में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में भी उस पर सुनाई देगी। तो दुआ भी कीजिए कि ये चीज़ बढ़े। अब मैं इस तरफ आता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है उस पर तेलुगु में मुझसे पहले मोहतरम सिराजुर रहमान साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है। किसी का शेर है कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि दुनिया में 3 तरह के इंसान जन्म लेते हैं। एक इंसानों की कैटेगरी वो है जो समाज से सिर्फ कुछ लेते हैं लेकिन रिटर्न में समाज को देते नहीं। उनके इस दुनिया से जाने के बाद समाज उन्हें याद नहीं करता। एक इंसानों की कैटेगरी वो है जो गिव एंड टेक की लाइफ जीते हैं, समाज से कुछ लेते हैं तो रिटर्न में समाज को भी कुछ देते हैं, लोग उन्हें कुछ दिन तक याद करते हैं। और तीसरी सुप्रीम कैटेगरी इंसानों की वो है जो समाज से कुछ मुतालबा नहीं करते बल्कि समाज को सिर्फ देते हैं। अगर उनके पास एक रोटी है तो उसमें की भी आधी वो अपने किसी पड़ोसी, जरूरतमंद या भूखे को दे देते हैं और समाज उन्हें बरसा बरस बल्कि सदियों तक याद करता है। इस सुप्रीम कैटेगरी में अंबिया होते हैं, औलिया होते हैं, शुहदा होते हैं, सहाबा होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो पर्सनालिटीज होते हैं जो अपने देश, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार, उस सब के लिए गिविंग का जज्बा रखते हैं। उसमें कुछ वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन एसेट होते हैं। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी मस्ट ट्राई टू बिकम द एसेट नॉट द लाइबिलिटी। ना अपने परिवार पे लाइबिलिटी बनिए, ना अपने घर पे लाइबिलिटी बनिए, ना अपने पड़ोसी पर लाइबिलिटी बनिए, ना अपनी लोकेलिटी या अपने देश पर लाइबिलिटी बनिए, बल्कि जो लोग लाइबिलिटी होते हैं वो हमेशा बैगर की जिंदगी जीते हैं और जो लोग एसेट होते हैं वो हमेशा गिवर की जिंदगी जीते हैं। तो हमें अल्लाह से ये दुआ भी करना चाहिए नमाजों में कि ये हुक्म है इस्लाम में कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मुस्तहिक ज़कात है तो उसे, या सदक़े का मुस्तहिक है तो उसे हिकारत की नज़रों से देखा जाए, बल्कि वो आपका, उसका एहसान है, वो आपके माल को पाक करने का जरिया है। इसलिए, लेकिन देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। इसलिए हमें और आपको अपने समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी लोकेलिटी के लिए भी, अपने देश के लिए भी एसेट बनना है, लाइबिलिटी नहीं बनना है, ताकि हम भी जब इस दुनिया से जाएं तो लोग सूफी संतों की तरह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह
या उन महापुरुषों की तरह जिन्होंने एक तारीख रकम की है अपने देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण तक, उस तरह से हम उनको याद कर सकें। अगर किसी परिवार में 4 बच्चे होते हैं, उनमें 3 बच्चे अर्न करके लाते हैं, एक बच्चा नाकारा घूमता है, तो वो भी अजीज तो होता है पेरेंट्स को, लेकिन वो पेरेंट्स की वो मोहब्बतें हासिल नहीं कर पाता जो वो 3 बच्चे हासिल कर पाते हैं। इसलिए जहां भी रहें, आपका जो खिताब कुरान में जो तारुफ है मुसलमान का, वो है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें समाज की तरफ भेजा गया, इस दुनिया में भेजा गया। तो जाहिर है जब तुम्हें बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया गया, आपको बेस्ट कम्युनिटी अगर कहा गया है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, कुछ आपकी ड्यूटीज भी होंगी। तो आपकी ड्यूटी यह है कि आप लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दें और लोगों को बुराइयों से रोकें। अच्छाइयों का हुक्म वो दे सकेगा जो खुद भी अच्छाइयों पर गामजन हो, बुराइयों से वो इंसान रोक सकेगा जो खुद भी बुराई से रुकता हो। कोई इंसान अगर खुद शराब पीता हो तो शराब बंदी का ऐलान नहीं कर सकता। कोई इंसान खुद जुआ खेलता हो, कोई इंसान खुद सूद लेता हो, कोई इंसान खुद हराम खाता हो, कोई इंसान खुद अय्याशी करता हो, तो वो फिर समाज में कोई तब्दीली नहीं ला सकता। बल्कि समाज में तब्दीली लाने के लिए एक अच्छे किरदार की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर ऐलाने नबुव्वत तक वो किरदार पेश किया कि जब अरब में शराब हराम नहीं हुई थी, हर घर में तकरीबन शराब पी जाती थी, लेकिन नबी ने कभी शराब नहीं पी, नबी के वालिद ने कभी शराब नहीं पी, नबी के दादा ने कभी शराब नहीं पी, नबी की तरबियत करने वाले चचा ने कभी शराब नहीं पी, नबी की पहली शरीके हयात जो ऐलान नबुव्वत से पहले आपकी जिंदगी में आई हजरत खदीजा, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, नबी की मदर ने कभी शराब नहीं पी। लिहाजा शराब तो हराम इस्लाम और कुरान की आमद के बाद हो रही है, लेकिन नबी की जिंदगी के एक लम्हे में शराब दाखिल नहीं है, नबी की जिंदगी के एक लम्हे में झूठ दाखिल नहीं है, नबी की जिंदगी के एक लम्हे में सूद दाखिल नहीं है, नबी की जिंदगी के एक लम्हे में कत्ल गारत गरी दाखिल नहीं है। जहां WWW बहुत फेमस था, वाइन वुमेन एंड वार, औरतें अगर बेवा हो जाती तो उन्हें जंगलों में धकेल दिया जाता था, बेवा की कोई जगह सोसाइटी के अंदर नहीं थी। लेकिन नबी 25 साल के शबाब में 40 साल की खातून बेवा जो 2-2 शौहरों के साथ बेवा थी, उनसे अपनी पहली शादी कर रहे। और जब बेटियों को पैदा होने के बाद जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो नबी बेटियों की अजमत के बारे में हुक्म दे रहे हैं कि जिसके 3 बेटियां हैं वो सीधा जन्नती है। लिहाजा नबी अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होने के बाद बेटियों की ताजीम किस तरह की जाए, इस तरह से समाज को गाइड फरमा रहे। ये ऐलान नबुव्वत से पहले वाक़यात हैं, जब लोग ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, लेकिन मक्का के लोग अपनी अमानत नबी के पास ला के रखते हैं, और उन्हीं मक्का के लोगों ने आपको सादिक व अमीन का खिताब दिया था कि आप सच्चे भी हैं और आप ईमानदार भी हैं। लिहाजा कुरान तो नाजिल हुआ 40 साल की उम्र में, लेकिन पैदाइश से लेकर 40 साल की उम्र तक जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है जो कुरान के मुखालिफ है। जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है जो निज़ाम फितरत के मुखालिफ है। जिंदगी का एक ऐसा लम्हा नहीं है जो नफ्स की मुताबिकत करता हो और अल्लाह की रजा की मुखालफत करता हो। क्योंकि कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन, अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी है, हदीस कुदसी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबू गिल के दरमियान थे। यानी अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से कायनात को पैदा किया गया और मैं बेशक अल्लाह का नूर हूं। यह हदीस कुदसी है। यानी सबसे पहले जब अल्लाह ने इस रूए ज़मीन को बनाने का इरादा किया तो अपने नूर से नबी के नूर की तख्लीक की, और वो कभी पुश्ते आदम में आया, कभी किसी नबी की पेशानी में आया, और वो मुंतकिल होता हुआ शिकम मादर में हजरत आमना के शिकम में हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से नमूदार हुआ। लिहाजा किरदार साजी पहले जरूरी है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए ये इस्लाम का निजाम बताता है, ये सीरत का मैसेज हमें बताता है कि नबी ने पहले अपने बदतरीन दुश्मनों से भी जिस समाज में रहे उसमें अपने किरदार को मनवाया। ऐलान नबुव्वत नहीं किया बल्कि अपने किरदार को मनवाया। अगर दाई हलीमा की गोद में दूध पिया
तो एक शिकम से दूध पिया, एक पिस्तान से, और दूसरे पिस्तान का अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ा। जबकि राइट साइड से नबी दूध पीते थे और लेफ्ट साइड का छोड़ते थे। और साइंस ये बताती है कि औरत के लेफ्ट साइड में दूध ज्यादा होता है और राइट साइड में कम होता है। तो जिधर कम था उधर का नबी पीते थे, जिधर ज्यादा था अपने रजाई भाई के लिए छोड़ते थे। जिसको किसी शायर ने कहा कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की आदत पे लाखों सलाम। ये नबी का इंसाफ, ये सोशल जस्टिस का शिलान्यास दाई हलीमा की दूध पीने के गोद में दूध पीने के जमाने में है। उनकी बकरियां चराने के लिए जाते नबी। तो नबी की जिंदगी से क्या साबित होता है कि पहले अपना किरदार मनवाया जाता है। पहले खुद तो बनो देवता की तरह, पूजने के लिए देवियां आएंगी, पहले फूलों से किरदार पैदा करो, चूमने के लिए तितलियां आएंगी। तो पहले हमें किरदार साजी पर गौर करना। मुस्लिम आइकिया संगम का एक मकसद छोटा मकसद नहीं। इस मकसद से किसी को एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, कॉरपोरेटर, गांव का प्रधान नहीं बनना है। कोई कॉर्पस नहीं बनाना है दौलत का। कोई फंडिंग आपसे कलेक्ट करने के बाद उसे अपनी जात के लिए, अपना महल बनाने के लिए, अपनी गाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बल्कि मुस्लिम आइकिया संगम का मकसद आपको इस तरह से एक धारे में पिरोना है, जिस तरह मोतियों के जरिए से एक माला और एक तस्बीह पिरोई जाती है तो वो एक ताकत बन जाती है। जिस तरह ये खुली हुई उंगलियां इंतहाई कमजोर होती हैं, लेकिन जब इसे मुट्ठी थम बना लिया जाता है तो ये इंतहाई ताकतवर हो जाती है। जिसके लिए कुरान में हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरकाबाजी मत करो, तकसीम मत हो। और किसी इज्तिमाइयत का मतलब किसी मजहब के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ, किसी सोसाइटी के खिलाफ, किसी देशवासी के खिलाफ उसकी मुखालफत या उसका विरोध या उसके खिलाफ कोई सोच डेवलप करना नहीं है। आमतौर से मैं सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि वो तेलुगु जबान ना जानते हुए भी कि तेलुगु में आप क्या फरमा रहे होंगे, जब वो मुख्तलिफ मजाहिब की खूबियां बता रहे थे, जब वो आपको मोटिवेट कर रहे थे कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, तंजीम क्या तकाजा करती है। तंजीम में वो लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर सेल्फलेस जज्बा होता है। हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपनी इबादत, अपने रोजगार, अपने कारोबार, अपने सारे कामों में मसरूफ रहते हैं। शाम को घर का एक वक्त होता है, फैमिली के साथ डिनर करते हैं, दिन कैसा गुजरा, उस दिन से जो हमारे एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, ताकि हमारे घर के जो अफराद हैं वो जाने बाहर की दुनिया के बारे में, हमारे बच्चे जाने हमारी मशक्क़तों के बारे में, और अगले दिन का हम प्लान बनाते हैं। यह है एक शूरा का कंसेप्ट कि आप घर में परिवार के साथ दस्तरखान पे एक साथ बैठ के डिनर करें, आपस में बैठ के जब भी कोई काम करना चाहते हो तो मशवरा करें, क्योंकि मशवरे में खैर है, मशवरे में बरकत है। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर काम हुक्म रब्बी के मुताबिक फरमाया करते थे, जो हर काम वही के मुताबिक किया करते थे, लेकिन चाहे जंग का मसला हो कि अमन का मसला हो, कारोबार का मसला हो कि तिजारत का मसला हो, हिजरत का मसला हो, जब भी मसाइल आते थे अपने सहाबा किराम को अपने साथ बैठाकर मशवरा किया करते थे। और अल्लाह के रसूल ने जब पूरी दुनिया को पहला जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन मीसाक मदीना दिया, तो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद अक्सरियत हासिल करने के बाद पहले शूरा का कयाम किया, यानी कंसल्टेटिव बॉडी का कयाम किया। लिहाजा मशवरे में बरकत। हमें जब हर इंसान अक्ले कुल समझता है अपने आप को कि वो जो सोचे उसी को मान लिया जाए, वो जो कहे उसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, वो जो कहे अगर वो घर का बड़ा है तो आमन्ना व सद्दक़ना कहा जाए। बड़े का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन अपने छोटों से भी मशवरा कीजिए, अपने बड़ों से भी मशवरा कीजिए। बड़ों से इसलिए कि बड़ों के पास तजर्बा ज्यादा है, छोटों से इसलिए कि छोटे आइसोलेट फील ना करें। लिहाजा मुस्लिम आइकिया संगम का कोई भी इंसान हुसैन भाई से लेके आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ, उसकी जो भी उम्र हो, उसकी जो भी पोजीशन हो, हर इंसान अपने आप को इक्वल तसव्वुर करे, चाहे वो ज्यादा एजुकेटेड हो या कम एजुकेटेड हो।
ज्यादा अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास का हो, किसी भी जात और बिरादरी का हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को आसन तक़वीम पर पैदा किया है और जात और बिरादरी में, कबाइल में हमें इसलिए तकसीम किया गया कि ताकि हमें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया जैसे कुरान फरमाता है, और फिर हमें कबाइल में तकसीम कर दिया गया इसलिए ताकि हम पहचाने जाएं। ये सिर्फ हमारे इंट्रोडक्शन के लिए है। कोई इंसान मदिरा का रहने वाला, कोई खम्माम का रहने वाला, कोई विजयवाड़ा का रहने वाला, कोई निजामाबाद, हैदराबाद, महबूब नगर, किसी भी जगह का रहने वाला, वरंगल का रहने वाला है, किसी भी XYZ। तो हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। एक आइडेंटिटी वो है जो हमारी जगह के साथ निर्धारित होती है कि हमारा ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस लोकेलिटी से। एक आइडेंटिटी वो है जो हमारी मजहबी होती है कि हमारा ताल्लुक किस मजहब से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कौन से मजहब में हम बिलीव करने वाले हैं। एक हमारी आइडेंटिटी वो है कि हम कौन सी सब कास्ट के हैं, मुगल, शेख, सैयद, पठान, ये कौन सी कास्ट के हैं, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी हमारी वो है जो हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस की बुनियाद पर होती है कि हम अपर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। एक आइडेंटिटी हमारी वो है जो सोशल आइडेंटिटी होती है। सोशल आइडेंटिटी दौलत, शोहरत उसकी बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि इंसान के कारनामों की बुनियाद पर होती है। वो इंसान समाज में कैसा है, समाज में उसकी इज्जत कैसी है, समाज के लोग उसे किस नजर से देखते हैं, सोसाइटी उसके फैसलों का कितना रिस्पेक्ट करती है, सोसाइटी किस तरह से उसे प्यार करती है, किस तरह से उसे चाहती है, सोसाइटी किस तरह उसके साथ चलना चाहती है। तो इंसान अपनी मल्टीपल आइडेंटिटी की बुनियाद पर जीता है। ये आइडेंटिटीज इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं या अपने को ऊंचा समझें। ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं है कि हम किसी एक से मोहब्बत करें और दूसरे से नफरत करें, बल्कि ये आपके सब टाइटल्स हैं, ये आपकी डिफरेंट पहचानें हैं। जिस तरह से एक ग्रोसरी शॉप्स में अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं, कभी कभी एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कीमतें होती हैं, क्योंकि कोई उसका बहुत बेस्ट पार्ट होता है, कोई उसका मिडिल पार्ट होता है, कोई उसकी थोड़ी लोअर क्वालिटी होती है। लिहाजा अपनी आइडेंटिटी के साथ प्राउड करते वक्त कभी दूसरे को की इंसल्ट मत कीजिए, कभी दूसरे को लोअर मत समझिए, चाहे इकोनॉमिकल स्टेटस के एतबार से, चाहे एजुकेशन के स्टेटस के एतबार से, चाहे समाजी सोशल स्टेटस के एतबार से। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, दूसरे हमारी सबकी जो सबसे पहली आइडेंटिटी है, वो दो बड़ी आइडेंटिटीज हैं सबके ऊपर। एक आइडेंटिटी हमारे मजहब की है, सम्माहुल मुस्लिमून, कि अल्लाह ने आपका नाम मुसलमान रखा है, ये तो आपकी आइडेंटिटी बनाई हुई है। लेकिन अल्लाह ने आपका नाम शेख, सैयद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, इकबाल ने कहा था, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो सबसे पहले हमें यह मुहासबा करना है कि मुसलमान हमारा नाम तो है, इस्लाम हमारा दीन तो है, लेकिन इस्लाम की टीचिंग्स पर हम किस तरह अमल कर रहे हैं। मुमकिन है कि एक 5 वक्त का नमाजी अपने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल ना रखता हो, मुमकिन है कि 1 महीने के रोजे रखने वाला इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा इंसाफ ना करता हो, मुमकिन है कि तहज्जुद पढ़ने वाला भी बाज इंसान अल्लाह का खौफ और इंसाफ उसके ज़हन दिमाग पे इतना तारी ना हो कि वो लोगों के साथ बेईमानियां करता हो, लोगों के साथ झूठ और मकर और फरेब करता हो और उसका रिस्क हलाल का ना हो। लिहाजा हमें ये इबादतें आपको मुबारक, लेकिन ये इबादतें उस वक्त मकबूल होंगी कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है जब आप बुराई से रुकने लगे। आप नमाजी भी हैं और शराबी भी, तो नमाज मकबूल नहीं है। आप रोजेदार भी हैं और जुआ भी खेलते हैं, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, आप मुसलमान भी हैं और दूसरे की बेईमानी भी करते हैं, आप मुसलमान भी हैं और आपका पड़ोसी आपसे पनाह मांगता है, आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, तो फिर आपको अपने इस्लाम का, अपने मुसलमान होने का मुहासबा करना होगा। बल्कि आप अगर मुसलमान हैं तो ऐसे मुसलमान हो कि हर पड़ोसी आपका पड़ोसी बनना चाहे, जो आपका पड़ोसी नहीं है वो भी ये कोशिश करे कि मौलाना मुजाहिद साहब का पड़ोसी हो जाए,
حسین صاحب کا پڑوسی ہو جائے، اس لیے کہ نبی کے کردار و عظمت کی گواہی سب سے پہلے ان کے کردار کی گواہی ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے بھی دی تھی۔ اور جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، فاران کی چوٹی پر بلایا اور اونچی پہاڑی پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے ایک اعلان کیا کہ یہ بتاؤ اہل قریش، اگر میں آپ کو یہ اعلان کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو تمام اہل قریش نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم صبح کے سورج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے تو صادق و امین کا خطاب دیا ہے آپ کو، آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، آپ کو سچا کہا۔ آپ تو وما ينطق وحی الا یوحی، یعنی آپ تو وہی بولتے ہیں گویا کہ قرآن جیسے کہتا ہے کہ جو وحی کی جاتی۔ تو سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم یقین کریں گے۔ تب اللہ کے رسول نے انہیں قرآن سنایا اور یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی میرے پاس وحی آئی ہے اور مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے اور میں تمہیں آخرت کے خوف سے، آخرت کے خطرے سے یعنی جہنم سے آزادی دلانے آیا ہوں، لہٰذا آپ کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے نبی مان لو۔ تو ابو لہب یہ کہتا ہوا بھاگا کہ محمد تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ ابو لہب یہ کہتا ہوا بھاگا ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، قرآن نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ قرآن کا اعزاز، ایلیگیشن رسول پر لگایا جا رہا، کرٹیسائز رسول کو کیا جا رہا، جھٹلایا رسول کو جا رہا۔ رسول جواب نہیں دے رہے بلکہ اللہ جس نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آپ کا کردار بحیثیت امتی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے کردار کی گواہی اپنے تو اپنے بلکہ دوسرے لوگ دیں، جنہیں جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں وہ آپ کے کردار کی گواہی دیں، جو آپ کی ذات برادری کے نہیں ہیں وہ آپ کے کردار کی گواہی دیں، جو آپ کے رشتہ دار یا عزیز نہیں ہیں، پریوار کے نہیں ہیں، وہ آپ کے کردار کی گواہی دیں۔ تب انسان ایک ایسا انسان بنتا ہے کہ سماج میں وہ جو کہتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی لوگوں میں یہ جذبہ ہے کہ وہ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسلم آئیکیہ سنگم جس خلوص کی بنیاد پر، کتنا ایک سیکولر نام رکھا ہے، اور جس خلوص کی بنیاد پر اس کی شروعات ہے، انشاءاللہ العزیز راستے میں مشکلیں آئیں گی، کیونکہ ہر تحریک کا کام، ہر تنظیم کا کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ طرح طرح کے منافق صفت لوگ بھی ہوتے ہیں، آوازیں بھی کسیں گے، الزام تراشیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے، پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت بھی کریں گے، لیکن آپ نے اگر ان پر دھیان نہیں دیا اور اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا، کبھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو اسے مشورے کے ساتھ حل کیجئے، تو آپ آنے والے وقت میں اس دیش کا بھی نرمان کریں گے، سماج کا بھی نرمان کریں گے، اپنی کمیونٹی کا بھی نرمان کریں گے، جس سوسائٹی میں جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کا بھی نرمان کریں گے، تاکہ اگر کسی گلی میں مسلم آئیکیہ سنگم کا ایک فرد رہتا ہے تو وہ گلی اتنی صاف ستھرا نظر آئے کہ اس گلی سے جو بھی گزرے وہ یہ کہتا ہوا گزرے کہ یہ گلی ہے جس کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہے اور مسلم آئیکیہ سنگم کا ورکر رہتا ہے۔ اگر وہ گلی صاف نہیں ہے تو آپ خود صفائی کا انتظام لے کر اتر جائیے، اس لیے کہ النظافۃ نصف الایمان، آپ کے مذہب میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا۔ افریقہ کی سرزمین پر جب ایک سائنسٹسٹ کو برنارڈ شاہ نے اس واقعے کو قلم بند کیا کہ جب ایک نابینا سائنسٹسٹ گزرا اور اس کے پیر میں ٹھوکر لگی تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس راستے سے شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا، اس لیے کہ مسلمان تو جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستوں کے کانٹے ہٹاتا ہوا گزرتا ہے، وہ پتھروں کو ہٹاتا ہوا گزرتا ہے۔ آج ہمارے گھر محلات کی طرح صاف ستھرا ہوتے ہیں، ہمارے ہوٹلز کے کھانے بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہوٹلز میں سروسز اور صفائی اچھی نہیں ہوتی، ہمارے محلوں میں ساری گندگی روڈ پر ہوتی ہے۔ روڈ پر ہم جبرن لینڈ گریپنگ کرنے کے بعد اگر ریسٹورنٹ کھولتے ہیں تو ان دیگوں کو روڈ پر رکھتے ہیں اور روڈ پر ہی فرائی کی کڑھائی لگاتے ہیں۔ یہ تہذیب آپ نے کہاں سے سیکھی؟ دوسرے لوگ اگر اس پر قبضہ کر رہے ہیں تو آپ تو مت کریے۔
آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا کسی کا حق مارنے کے، چاہے وہ پراپرٹی سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، چاہے وہ آپ کے کسی بھائی بند کی ہو یا غیر کی ہو، اور غیر تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم سب وی آر انڈین فرسٹ ایٹ لاسٹ، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا۔ تو ہماری ایک آئیڈینٹی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس ہندوستان میں بسنے والے ہیں جس کے لیے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، چشتی نے جس وطن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو ہم ایک اچھے ہندوستانی بنے، ہم ایک اچھے انسان بنے، اور ہم ایک اچھے مسلمان بنے۔ اگر ہم اچھے مسلمان ہوں گے تو ہم یقیناً اچھے ہندوستانی بھی ہوں گے اور ہم اچھے انسان بھی ہوں گے، اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان کسی کے حقوق پر، سچا مسلمان ڈاکہ نہیں ڈالتا، بلکہ مسلمان تو حقداروں کو حق دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کنتم خیر امت کے اعزاز سے آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا۔ اور قرآن کی ایک اور آیت، وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی تمہارے لیے وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو۔ یعنی جتنی کوشش، آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی کا راز صرف آپ کی کوشش میں آپ کے پاس چھپا ہوا ہے۔ آپ ہی ایگزام دینے والے ہیں، آپ ہی اس کا رزلٹ طے کرنے والے ہیں، آپ ہی ہے۔ یعنی جتنی جد و جہد آپ کریں گے، آپ جس طرح کوشش کریں گے، ایک شراب کا کاروباری ہے، اسے وہاں سے دولت آتی ہے، ایک جوئے کا کاروباری ہے، اسے وہاں سے دولت آتی ہے، ایک کسان دن میں ہل چلاتا ہے، دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، وہ وہاں سے رزق حلال حاصل کرتا ہے۔ تو آپ جس طرح بھی رزق حاصل کرنا چاہیں، حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہیں، حلال طریقے سے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن ایک رزق حرام ہوتا ہے، ایک رزق حلال ہوتا ہے۔ حلال رزق کے ذریعے جب تربیت کی جاتی ہے تو وہ بچے اپنے ماتا پتا، اپنے پیرنٹس کی سیوا کرنے والے، اوبیڈینٹ، ان کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ ایصال ثواب کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور حرام رزق سے جو دولتیں حاصل کی جاتی ہیں، وہ دولتیں انسان اور انسانیت کو غارت کر دیتی ہیں، اسے ذلیل و خوار بنا دیتی ہیں اسی دنیا کے اندر۔ لہذا وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کوشش کرتے ہو۔ لہذا اگر آپ کو آپ کی امید ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں مل پا رہا تو آپ یہ یقین رکھیے کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق آپ نے جتنی کوشش کی ہے، اللہ نے اسے اتنا نوازا۔ اگر کم ہے تو کوشش اور بڑھا دیجئے، اللہ اور نوازے گا۔ دوسرا ایک قرآن کی آیت ہے جو انتہائی برے وقت میں موٹیویٹ کرتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یعنی اللہ کسی بھی جاندار کو وہ تکلیف نہیں دیتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی there is no unbearable pain from the Almighty اللہ، کسی بھی جاندار کو، اسپیسی کو وہ unbearable pain نہیں دیتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آج اگر آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، کسی مہلک مرض میں مبتلا ہیں، غربت و افلاس کا شکار ہیں، کاروبار کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، محنت اور مشقت کر رہے ہیں لیکن ناکامی ہاتھ لگ رہی ہیں، تو اس پر صبر کیجئے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جو پین ہے، جو تکلیف ہے، وہ ابھی بیئریبل ہے، وہ انبیئریبل پین نہیں ہے، اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت کامیاب کرے۔ اب جو قرآن کی آیت کا مطلب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ مسلم ایکیہ سنگم کا مقصد ہے۔ تنظیم سازی یہ سنت رسول بھی ہے، مشورہ کرنا، مشاورت قائم کرنا، کنسلٹیٹو باڈیز بنانا، اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے، گاؤں کی سطح سے لے کے شہر کی سطح تک۔ یہی تو ہمارا فیڈرل اور ڈیموکریٹک اسٹرکچر بھی ہے پوری دنیا کا۔ دنیا میں جہاں جہاں منارکی ہے وہاں پر بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان ہو جاتا ہے اور اسے ہر انسان کو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن رسول نے منارکی قائم نہیں کی۔ رسول نے میثاق مدینہ کے ذریعے اور مشاورت قائم کرنے کے بعد دنیا کو جمہوریت اور فیڈرل سسٹم دیا، پوری دنیا کو۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا وہ ایک دنیا کا جمہوری اسٹرکچر ہے، یعنی ہمارے یہاں پر جہاں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ گاؤں سے لے کے جمہوری فیڈرل سسٹم آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ گرام پردھان ہوتا ہے، اس کے اوپر
जिला पंचायत का सदस्य होता है, मेंबर होता है, उसके ऊपर ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत का चेयरमैन होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, मुख्यमंत्री होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, एक एक एरिया के इंचार्ज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, प्रेसिडेंट होता है, एक ताना बाना है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसीज काम करती हैं, उनके काम करने का तरीका है कि एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, फिर एक ब्लॉक अधिकारी होता है, फिर उसके बाद असेंबली में जो असेंबली के डेवलपमेंट का अधिकारी होता है तहसील लेवल पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसी तरह पुलिस की एजेंसी का सिपाही के ऊपर दरोगा है, दरोगा के ऊपर एसएचओ है, एसएचओ के और कोतवाल के ऊपर जो है वो सीओ है, और सीओ के ऊपर एसपी है, फिर एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, यहां तक ये सिलसिला चलता है। इसी तरह एक सिंपली स्कूल का सिस्टम है, उस स्कूल के सिस्टम में जाने के बाद एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर फिर पीडीए है, फिर एजुकेशन अधिकारी, एक ही सिलसिला है। वैसे ही हमारे घरों का सिलसिला है। घरों में एक और बच्चा होता है, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो हमारी कम से कम 3 नस्लें एक छत के नीचे परिवार चलती हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और फिर बच्चे होते हैं। दुनिया के मसाइल में छोटों को बड़ों को फॉलो करना होता है। दुनिया की टेक्नोलॉजी, जो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज की नई नस्लें अपने बड़ों से कई गुना आगे निकल गई है। और खलील जिब्रान ने कहा था कि द पेरेंट्स आर लाइक बो एंड द चिल्ड्रन आर लाइक एरो, और बो यानी कमान वहीं रह जाता है और तीर बहुत आगे चला जाता है। बिकॉज टुडे चिल्ड्रन आर फादर ऑफ टुमारो, जो आज के बच्चे हैं वो कल के बाप हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपना बेहतरीन दोस्त बनाओ, उनके साथ मशवरे करो, और अपने अंदर एक तंजीम से, एक डोरी से बन जाइए। सपोज करिए इंडिविजुअल ताकत क्या होती है। आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, अगर आप अपनी बस्ती में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, अगर आप बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, तो शायद गांव का प्रधान भी आपकी बात को वैल्यू ना दे अगर इलेक्शन करीब ना हो। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सिपाही भी आपको तवज्जो नहीं देगा। अगर आप और कहीं एमएलए, एमपी के पास जाते हैं तो शायद वो मिलने का भी आपको टाइम ना दे, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी कोई खास वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कोई बहुत बड़े आदमी हैं, 150 लोग आपके पीछे हैं, आप अपनी बस्ती में ये तय कर सकते हैं कि जिसके समर्थन में आप खड़े हो जाएं वो एमपी और एमएलए बन जाएगा, वो ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा, वो गांव का प्रधान बन जाएगा, उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, उसका मदद से इलाज हो जाएगा, तो आपकी सब वैल्यू देंगे। तो इंडिविजुअल ताकत क्या है? एक व्यक्ति की इंडिविजुअल ताकत होती है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जब आप तंजीम साजी कर लेते हैं, जब आप उसे कोई नाम दे देते हैं, जब आप अंडर वन अम्ब्रेला आ जाते हैं, तो वो कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। 100 साल पहले जमीयतुल उलमा बनी, आज जमीयतुल उलमा की देश में एक हैसियत है। 100 साल पहले आरएसएस बनी, आज आरएसएस की एक हैसियत है। तकरीबन 50 साल से ज्यादा हुए जमीयतुल उलमा को बने हुए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बने हुए, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक पहचान है। और जितनी भी जमातें हैं अलग अलग, मैं किसी मसलकी या उसकी जमात का जिक्र नहीं करूंगा, जो देश में अलग अलग खित्तों में काम करती हैं, वो एक जमहूरी सिस्टम के अंतर्गत एक वेल ऑर्गेनाइज काम करती है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में ही देखिए, तो जहां किसानों की बात आती है और किसानी की, तो हुकूमत को अपने फैसले बदलने पर मजबूर करने वाली वाहिद एक कम्युनिटी है जिसकी तादाद 2% है, और शायद 2 से 2.5 करोड़ के बीच में वो हमारे देश में बसते हैं, सिख कम्युनिटी। लेकिन वो किसान आंदोलन करते हैं तो सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ जाता है। ये उनकी यूनिटी और एग्रीकल्चर में उनके परसेंटेज और उनके कंट्रीब्यूशन की पावर है। क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप देखिए एजुकेशन डिसिप्लिन में जो उन्होंने काम किया कि हर सभ्य आदमी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में और मिशनरी स्कूल में भेजना चाहता है। और मिशनरी स्कूल में अगर किसी का बच्चा है तो हम ये सोचते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको अंग्रेजी अच्छी आती होगी, डिसिप्लिन अच्छी आती होगी। उन्होंने एजुकेशन डिसिप्लिन को समझ लिया। देश में माइक्रो स्मॉल कम्युनिटी है पारसी। पारसी कम्युनिटी की तादाद
आशारिया कुछ परसेंट है, पॉइंट आशारिया कुछ परसेंट उनके पास रतन टाटा है। देश का सबसे बड़ा एयरलाइंस उनके पास है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक उनके पास है। नमक से लेकर और हायर कमोडिटीज तक, कार तक वो बनाते हैं। आपके घर में शायद एक बार स्लोगन दिया गया था कुछ पहले, जब टॉयलेटरीज और ब्यूटी के प्रोडक्ट आए थे, तो हिंदुस्तान लीवर ने एक जो डच कंपनी है उसने एक स्लोगन दिया था कि नो वन कैन इमेजिन लाइफ विदाउट हिंदुस्तान लीवर, यानी हिंदुस्तान लीवर के बगैर कोई लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता। आपके घर में सोप होगा हिंदुस्तान लीवर का, जिस साबुन से आप नहाते हैं। आपके घर में कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान लीवर बनाता है। लेकिन आज के जमाने में यह बात कही जा सकती है, शायद कम से कम हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में टाटा का कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगा। रतन टाटा पारसी कम्युनिटी से आते हैं। इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी के बाद शायद ही उस कम्युनिटी का कोई एमपी, एमएलए या मिनिस्टर रहा हो। उन्होंने लीडर नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग पैदा किए कि लीडर उनके दरवाजे पे खड़े होते। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनाए, इंडस्ट्री पे कब्जा किया। हाईली इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी। उसके बाद उससे बड़ी माइनॉरिटी है जैन कम्युनिटी। आज से नहीं बल्कि मुगल पीरियड से मारवाड़ियों का, जैन समाज का सारा फोकस तिजारत पर है। और तिजारत में वो इतने दौलतमंद हैं और अपने मजहबी मामलात को भी साथ लेकर चलते हैं। हर एक उसमें मंदिर जाता है। हर सिख डेली गुरुद्वारे में कुछ सेवा करने के लिए जाता है। कभी आपने सोचा, आपके पास तो 5 वक्त की नमाज का भी टाइम नहीं, आप तो ये भी नहीं सोचते कि आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इमाम के घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है, इमाम के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम अगर बीमार है तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर एक इंग्लिश मीडियम का और मैथ पढ़ाने वाला टीचर आता है तो उसको अगर ट्यूशन के आप 3,000 रुपये महीना देते हैं तो इमाम को कुरान पढ़ाने के 300 रुपये महीना देना आपको मुश्किल पड़ते हैं। ये हमारी कम्युनिटी का हाल है। लिहाजा उन्होंने एक डिसिप्लिन पैदा की। डेली कितना ही अमीर सरदार हो, लेकिन सरदार गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए जाता है, डोनेट करके आता है। जैन सेवा करने के लिए जाता है, डोनेट करके आता है। बड़े बड़े चैरिटी ट्रस्ट रतन टाटा से लेके और पारसी कम्युनिटी ने खोले हुए हैं। क्रिश्चियंस ने बड़े बड़े ट्रस्ट खोले हुए हैं और बेस्ट स्कूल उनके पास हैं इसी देश के अंदर। जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अबुल कलाम आजाद से लेके एपीजे अब्दुल कलाम तक कोई नहीं रोकता। इसलिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जितने मुसलमानों में रिस्पेक्टेड थे, उससे ज्यादा हिंदुस्तान की अक्सरियत में और पूरी दुनिया में उनका रिस्पेक्ट किया जाता। हमारे होश में कोई इतना रिस्पेक्टेड और पॉपुलर अवाम के बीच ऐसा प्रेसिडेंट शायद ही किसी ने देखा हो जितनी पॉपुलरिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी। कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। आप ये सोचते हैं कि शायद एक पर्टिकुलर पार्टी जो आपको नुमाइंदगी नहीं देती, उसी ने सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचे पद पर किसी का इंतखाब किया। क्यों? कि उनकी इसलिए जरूरत थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने विजन के लिए, अपने किरदार के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए, मिसाइल मैन की हैसियत से, साइंटिस्ट की हैसियत से वो कंट्रीब्यूट कर चुके थे कि पूरा देश उन्हें सलाम करता था और जब राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया उनको सलाम करती थी। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है, हम मोमिन हैं तो हम अच्छे नेशनलिस्ट भी होंगे। कोई भी एंटी नेशनल सोच रखने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। हालात आते हैं, अच्छे और बुरे हर तरह के हालात आते हैं, उनको डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग के जरिए दूर किया जाता है। अगर कोई आपकी मजहबी दिल आजारी कर रहा है, आपके मजहब को बुरा कह रहा है, तो आपको रिटर्न में ये इजाजत नहीं है कि आप उसके मजहब को बुरा कहें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हर कौम रास्त राहे दीन व क़िबला का है। हर कौम का एक अपना डायरेक्शन है, उसके लिए अपना क़िबला है, अपना रास्ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम दूसरों के दीन या उनकी परंपरा या उन्होंने जो किया है उसको बुरा कहोगे तो रिवर्ट में आप उनके झूठे खुदाओं को बुरा कहोगे, वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो
हमें किसी की दिल आज़ारी की इजाज़त नहीं, किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर किसी से नफरत करने, बायस्ड होने की। हम अगर किसी पोजीशन पे हैं तो हमें अनबायस्ड होना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना में इक्वलिटी का मैसेज दिया। आज अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया में हम या तो माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं। जहां हम माइनॉरिटी में हैं वहां तो हम फेडरल सिस्टम चाहते हैं, जमहूरी कानून, डेमोक्रेसी चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इक्वल राइट हों। लेकिन जहां हम मेजॉरिटी में हैं वहां हमारे मुल्कों में ज्यादातर मोनार्की है और हम इक्वल राइट नहीं देना चाहते, तो हम मीसाक़ मदीना से दूर हैं। गवर्नमेंट का बेस्ट सिस्टम वही है जो अल्लाह के रसूल ने मीसाक़ मदीना में पैदा किया। लिहाजा एक रस्सी से बन जाइए, एक डोर से बन जाइए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। और अल्लाह की रस्सी इंसानियत की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी मानवता की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी ह्यूमैनिटी की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी सोशल जस्टिस को मजबूत करने और उसे इंप्लीमेंट करने वाली रस्सी है। अल्लाह की रस्सी एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करने का पैगाम है। अल्लाह की रस्सी आपको कैरेक्टर बिल्डिंग, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है और समाज में अपने देश के लिए, अपने समाज, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। आज काफिला छोटा है, कल बड़ा होगा। आज मुस्लिम ऐक्य संगम खम्माम और आसपास के कुछ जिलों में एक्टिव है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये मुस्लिम ऐक्य संगम पूरे तेलंगाना और आंध्रा में, पूरे तेलुगु और उर्दू स्पीकिंग हल्के में मजबूत होगी, और फिर ये एक देश की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और हर आदमी कहेगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अभी मौलाना मुजाहिद साहब, हुसैन साहब और उनके तमाम साथी, आप अपने साथियों के ये आवाज दें कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ, और ये जो शमा है वो यूनिटी की शमा है, ये शमा एजुकेशन की शमा है, ये शमा डेवलपमेंट की शमा है, ये शमा मानवता और एकता की शमा है। ये शमा अपने देश को भी आगे ले जाएगी, अपने समाज को भी आगे ले जाएगी, इंसानियत को भी आगे ले जाएगी। एक आइडियल कैरेक्टर बनाना है कि जिस जगह भी रहें लोगों के अंदर ये मिसाल बने कि लोग हर जगह कहें कि चलो ये बात है। अगर कोई आपस में दो ग्रुप लड़ रहे हैं तो लोग आए कि मुस्लिम ऐक्य संगम के हाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, प्रधान जी हैं, उनके पास चल के मशवरा करा लेते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़िए, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़िए, अपना रिश्ता कारोबार से जोड़िए, इसलिए कि तिजारत सुन्नत है और तिजारत से आपकी तरक्की होगी। हाथ पे हाथ मत धरिए, बल्कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अपना रिश्ता कुरान से जोड़िए, नबी की सीरत से जोड़िए, एजुकेशन से जोड़िए, सफाई से जोड़िए, हेल्थ का अपने ख्याल रखिए, कारोबार और तिजारत से जोड़िए, अपनी भी खिदमत करिए, अपने परिवार की खिदमत करिए, अपने समाज और आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए, अपने देश को आगे ले जाइए, अपने समाज को आगे ले जाइए। क्योंकि कौमों की तरक्की उनके देश, उनके समाज के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कोई एक इंसान डेवलप करता है तो समाज डेवलप नहीं करता, किसी एक के आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब हम वेल ऑर्गेनाइज होके एक कोशिश करते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। अपने मशवरे कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त मुस्लिम ऐक्य संगम का वक्त होगा। हर जगह आप समाज की जरूरत बनेंगे। जो लोग समाज के लिए एसेट बनते हैं, जो लोग समाज के लिए जरूरत बन जाते हैं, लोग उनको अपना रहनुमा मानते हैं, अपना कायद मानते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट होती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में और अभी से जो खिदमात आपकी कोशिशें, जो हुसैन भाई, आबिद भाई, मौलाना मुजाहिद साहब मुझे भेजते और बताते रहते हैं, मुझे दिल्ली में रहने के बाद प्राउड होता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू, एवरी मेंबर ऑफ मुस्लिम ऐक्य संगम। आई सैल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम ऐक्य संगम पाइंदाबाद।
డాక్టర్ హఫీజుర్ రెహమాన్ సాబ్ చాలా చక్కగా అన్ని విషయాలు విడమర్చి చెప్పారు. మొత్తానికైతే చురుకైన కార్యకర్తలకి మంచి సందేశం అందిందని భావిస్తూ ఉన్నాను. చివరగా ముస్లిం ఐక్య సంఘం తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మౌలానా షేక్ ముజాహిద్ ఇషాతి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. హలో కూర్చోలు అయిపోయింది, ఒక్క 10 నిమిషాలు. ఎంతసేపు ఓపిక పట్టారు కదా, అయిపోయిందో. చివరిలో మనం బదనాం కావద్దు. దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. 10 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. मोहतरम हजरात, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्लिम ऐक्य संगम के वर्कशॉप में आप कसीर तादाद में यहाँ शिरकत की है। मुस्लिम ऐक्य संगम की ताकत आप है। आप जैसे अफराद मेहनती बासलाहियत लोग से ही मुस्लिम ऐक्य संगम की ताकत है। आज मुस्लिम ऐक्य संगम के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप जो आप लोगों ने अपनी रज़ामंदी का इजहार करते हुए कि हम मुस्लिम ऐक्य संगम के कदम ब कदम चलेंगे, मुस्लिम ऐक्य संगम का साथ देंगे, मुस्लिम ऐक्य संगम का मेंबर बनते हुए आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज इस वर्कशॉप से हम ये उम्मीद करते हैं कि आज से आप हजरात मेंबर नहीं बल्कि एक्टिव मेंबर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। आप एक्टिव मेंबर बन के काम करने के लिए तैयार हैं भाई? तैयार है? वक्त देने के लिए तैयार है? क्योंकि मुस्लिम ऐक्य संगम का सरमाया, दौलत, रोशन मुस्तकबिल आप है। आप जैसे बासलाहियत अफराद इस तंजीम के साथ में मिलकर काम करेंगे, एक नया मुस्तकबिल हम दर्ज कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मुस्लिम ऐक्य संगम के साथ में जुड़कर काम कीजिए। हमको ग्राउंड लेवल में, विलेज लेवल में काम करना है। इसीलिए आपको विलेज लेवल से आप मेंबर्स को, एक्टिव मेंबर्स को यहाँ इनवाइट किया गया है। हमें बच्चों को मकतब से जोड़ना है, बड़ों को मस्जिद से जोड़ना है, हर गरीब की आवाज़ बनना है। हर देहात में हम ये भरोसा दिलाएं कि तुम्हारी तकलीफ़ों में मुस्लिम ऐक्य संगम खड़ी है, तुम्हारे ज़रूरत में मुस्लिम ऐक्य संगम खड़ी है। आप हजरात की ये जिम्मेदारी है कि विलेज लेवल में, देहात के रहने वाले हर फर्द को ये भरोसा दिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए, दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों में से जो 10 बजे से लेके अब तक वर्कशॉप चला है, यूनिटी के बारे में, मुस्लिम ऐक्य संगम की एक्टिविटीज़ के बारे में आपके सामने तफसीलात आई हैं। इस सिलसिले में कुछ अपने ख़यालात, कुछ तजर्बात अगर आप कोई बोलना चाहे तो स्टेज पर आ जाइए। मुस्लिम ऐक्य संगम वर्कशॉप के बारे में, आज के तरबियती प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ कहना है, इजहार ख्याल करना है तो स्टेज पर तशरीफ़ लाइए।
आज का ये हमारा वर्कशॉप फायदा मंद है न या नहीं? हाथ उठा के बोलिए। अब से हम सब मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आप सब काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि खड़े हो जाएं। हम ये इरादा और अहद करेंगे। आप सभी हजरात खड़े हो जाएं। मेरे साथ में आप भी बोलते रहिए, क्योंकि अजीज दोस्तों, आप ही हमारा सरमाया। सरमाया का मतलब तेलुगु में आस्ती। अब हर एतबार से हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बस आपसे हम अपील गुजारिश करते हैं कि आपका अपना कीमती वक्त दीजिए, वक्त लगाइए देहात में। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपके देहात से आकर यहाँ मदीने में आकर काम कीजिए। हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आपका इहाता आपका गांव है, लेकिन गांव में ऑल राउंड डेवलपमेंट हमको करना है। एजुकेशन भी, दीनी तालीम, असरी तालीम, मस्जिदों की आबादी, गरीबों की इमदाद, हर एक का सहारा बनना, आपस में इख्तिलाफात को दूर करना, भाईचारा आपस में पैदा करना, इत्तेहाद का पैगाम हमें ये सब हमारे देहातों में ये एक्टिविटीज, ये पैगाम को लेके जाना है इंशाअल्लाह। आइए हम अहद करते हैं, मेरे साथ में बोलिए। हम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और इखलास के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और मुस्लिम ऐक्य संगम को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन नेक नियतों को, हमारे खिदमतों को कबूल फरमाए। बैठ जाए। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या जल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, ख़ताओं को दरगुज़र फरमाइए, तमाम सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमाइए। हमारे इस तरबियती प्रोग्राम को कबूल फरमाइए, वर्कशॉप को कबूल फरमाइए। मौला, इस अफराज साजी के लिए ये प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया है। आप ही तरबियत करने वाली ज़ात हैं। मौला, इन सब को मुस्लिम ऐक्य संगम की खिदमत के लिए कबूल फरमाइए। मुस्लिम ऐक्य संगम की खिदमत को करने के लिए कबूल फरमाइए। हम सब में इखलास पैदा फरमाइए, ईमानदारी पैदा फरमाइए, दियानतदारी पैदा फरमाइए। लगन के साथ में इस खिदमत को करने की हम सब को तौफीक नसीब फरमाइए। हम सब के आने को कबूल फरमाइए, हम सब के आने को कबूल फरमाइए। या अल्लाह, मुस्लिम ऐक्य संगम को हर किस्म की शर से हिफाजत फरमाइए, हर किस्म की शर से हिफाजत फरमाइए। हम सब के यहाँ आने को बेहद कबूल फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। కార్యక్రమం ముగిసిపోయిందండి. చివరగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఈ మా కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి, మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి
ముఫ్తీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ గారికి, అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజుర్ రెహమాన్ గారికి, అలాగే డాక్టర్ హఫీజుర్ రెహమాన్ గారికి, అదేవిధంగా వివిధ మండలాల నుంచి వివిధ గ్రామాల నుంచి మా యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ వర్క్షాప్కు హాజరైనటువంటి అందరికీ కూడా ముస్లిం ఐక్య సంఘం తెలంగాణ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం ఇప్పటితోటి ముగిసిపోయిందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, होका हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फान. रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी. क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फान. रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान. जब खुदा की సోదరులారా, मर्जी से భోజనం చేసిన తర్వాత మీకు అందుబాటులో ఉన్న మసీదులో వెళ్ళి నమాజ్ చదువుకోవచ్చు रब के కోరుతున్నాం. सिवा हरगिज़ कोई बच न पाएगा, हो फरिश्ता या इंसान कुल्लु मन अलैहा फान. कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान. एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी. पढ़ के देख ले कुरान कुल्लु मन अलैहा फान. रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान. तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है. 4 दिन का है मेहमान कुल्लु मन अलैहा फान. कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान. झोपड़ी हो या बंगला గ్రామ స్థాయిలో ఇచ్చినటువంటి बसेंगे जाफर. ఐడి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయో ऊंचे అవి అందరూ కూడా భద్రపరచుకోగలరు. होंगे रूई के हम మండల కమిటీ వారికి ఇచ్చినవి, సెంట్రల్ కమిటీ వారికి ఇచ్చినవి, మరియు స్వచ్ఛందంగా పనిచేయడానికి వచ్చిన కమిటీ సభ్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ట్యాగ్ ముస్లిం ఐక్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడిన ఐడి ప్రూఫ్స్ మీకు ఇచ్చారో అవి అన్నీ కూడా చాలా భద్రపరచగలరు. మళ్ళీ మనకి ప్రోగ్రాం జరిగినప్పుడు అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకుని వస్తారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా చాలా భద్రంగా ఉంచగలరు झूठी ఇన్షాల్లా. रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, होका हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फान. कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान. रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी. क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फान. रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा
مولا مولا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملا نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں